A very good evening to all of you, and a warm welcome to today's session. Sit back comfortably. We will start our session with a short meditation. Sit back comfortably with your back erected. Now relax your body and focus on your breathing. Relax your mind by releasing all the tension and tiredness. Exhale. As you inhale, feel the freshness of the air. Feel the positivity and happiness that surrounds you. Embrace this present moment. Focus on the areas that bring you joy today. Admire yourself for giving your best this day. Feel God's presence with you, within you, within your heart. Say, "Thank you, God, for everything." Now affirm, "I am God's child. I am made up of love and light. I am protected, safe, and happy. I am worthy of everything I desire. I follow my personal calling, my inner calling. I am on the path that God has chosen for me here on earth. Everything I do, every moment of it, fills me with enthusiasm. I am a warrior of light. I am a patient soul. I am patient in all the times, and I know that the universe is conspiring in my favor, even though I may not understand how. I trust the process. I believe God and my destiny. Everything happening with me is for my benefit. And I have my companion, God, the Supreme Father, with me every second. I am a happy soul. I am peaceful. I am loveful. I radiate love. I am worthy. I believe upon myself and my dreams. I am an instrument of God and I help the soul of the world. All is well in my world. Om Shanti. Now we will start our session
I'll just share the screen. So today is the second session of this book, The Alchemist. We have read in the first session that there's a boy, a shepherd, whose name is Santiago. He is traveling with his flock of sheep, and he is having certain kind of thoughts. Now today we will start from the boy who was surprised at his thoughts. Maybe the church with the sycamore growing from within had been haunted. It had caused him to have the same dream for a second time, and it was causing him to feel anger towards his faithful companions. तो यहाँ पे जो सैंटियागो है वो अपने खुद के थॉट से सरप्राइज्ड है क्योंकि अ, उसके थॉट्स क्या चल रहे थे। कल हमने क्या देखा कि जो फ्लॉक है, अगर वो मॉन्स्टर बन जाए सैंटियागो और वो अपने फ्लॉक को किल करना स्टार्ट कर दे वन बाय वन, तो वो लोग तभी अवेयर होंगे जबकि मोस्ट ऑफ द फ्लॉक उसमें वो उनको मार चुका होगा। अभी वो सोच रहा था कि उसके जो शीप है वो तो उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो ये सब कुछ वो सोच रहा था। इसीलिए अभी ये जो सैंटियागो है ये अपने खुद की थॉट से काफी ज्यादा सरप्राइज्ड है, और वो सोच रहा है कि ये जो चर्च है यही हॉन्टेड हो सकता है जिसमें साइकोमोर ग्रो कर रहा है। ये जो चर्च है ना, ये अबेंडन चर्च है जैसे हमने कल देखा था, और उसकी रूफ भी टूटी हुई है। ये हॉन्टेड हो सकता है, ऐसा वो इसीलिए सोच रहा है क्योंकि सेकेंड टाइम उसे ऐसा ड्रीम आया है, सेम ड्रीम, जिसकी वजह से उसे एंगर फील हो रहा है, उसे गुस्सा फील हो रहा है अपने फेथफुल कंपेनियंस पे। मतलब जो उसकी शिप है, जो उस पर बहुत ट्रस्ट करती है, उसके साथ रह रही है 2 साल से, तो उन्हें उनके ऊपर गुस्सा आ रहा है अपने सपने की वजह से। He drank a bit from the wine that remained from his dinner of the night before and he gathered his jacket close to his body. तो अभी ये सब कुछ सोचते सोचते उसने वाइन पी थोड़ी सी, जो कि उसके डिनर से बच गई थी, और उसने अपनी जैकेट को गैदर किया और उसे अपने बॉडी के पास लेकर आया। He knew that a few hours from now, with the sun at its zenith, the heat would be so great that he would not be able to lead his flock across the fields. तो अभी वो जब अपनी फील्ड पर जब अपने फ्लॉक ऑफ शीप को लेकर जा रहा है, तो फिर वो जानता है ये सुबह सुबह का टाइम है, और जब सन एकदम दोपहर में होगा तब इतना ज्यादा धूप होगा कि इतनी ज्यादा धूप होगी कि वो अपनी शीप को लेकर के नहीं जा पाएगा। इट वॉज द टाइम ऑफ डे व्हेन ऑल ऑफ स्पेन स्लेप्ट ड्यूरिंग समर। तो ये वही टाइम है जब समर के टाइम पर जो पूरा स्पेन है, यहाँ पे एंडलुसिया की बात हो रही थी ना, ये एंडलुसिया ये स्पेन का ही है, स्पेनिश प्रोविंस है। तो यहाँ पर ये बॉय कह रहा है कि सैंटियागो कह रहा है कि समय का वो टाइम है ये जब सब लोग सोते हैं। The heat lasted until nightfall and all that time he had to carry his jacket, but when he thought to accompany with his sister, please mute yourself. Thank you. तो जो हीट है वो नाइटफॉल तक लास्ट करेगा, मतलब इतनी ज्यादा तेज धूप होती है उस वक्त कि वो पूरे रात तक रहता है, उसकी मतलब जो तपिश होती है। एंड ऑल दैट टाइम ही हैड टू कैरी हिज जैकेट, और ये इतने इस टाइम पर तो जैकेट को पहन नहीं सकता है, उसको अपने जैकेट को कैरी ही करना पड़ेगा। बट वेन ही थॉट टू complain about the burden of its weight, he remembered that because he had the jacket, he had withstood the cold of the dawn. तो
जब जैकेट के बारे में, उसके वेट को वो जो कैरी करता है उसके बारे में कंप्लेन करने के बारे में उसने जैसे ही सोचा, तो उसने ये भी सोचा कि ये जैकेट ही है जिसकी वजह से ये कोल्ड में अपने आप को बचा पाता है। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर चेंज, ही थॉट, एंड ही वॉज ग्रेटफुल फॉर द जैकेट्स वेट एंड वार्मथ। जो सैंटियागो कह रहा है कि हमें चेंज के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, ऐसा वो सोच रहा है, और ये ग्रेटफुल था कि ये जो जैकेट है इसकी वेट भी है और इसमें वार्मथ भी है। मतलब इस वेट को उसे अभी कैरी करना पड़ रहा है जब हीट है उस वक्त, और वार्मथ की वजह से वो कोल्ड के टाइम पर प्रोटेक्टेड रहता है। तो मतलब हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हमें अपनी लाइफ में भी ऐसे देखना चाहिए। कोई भी चीज के बारे में जब हम कंप्लेन करते हैं, तो अगर हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की तरफ देखेंगे तो हमें बहुत कुछ अच्छा देखने को भी मिलेगा जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे कहा जाता है ना कि एक ग्लास ऑफ वाटर है, एक जन का पर्सपेक्टिव है कि ये हाफ फिल्ड है और एक जन का है ये हाफ एम्प्टी है। तो हमें वो हाफ फिल्ड वाले इस पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। द जैकेट हैड अ पर्पस एंड सो डिड द बॉय। इस जैकेट का भी एक पर्सन है और इस बॉय का, सैंटियागो का भी एक पर्पस है। His purpose in life was to travel, and after 2 years of walking the Andalusian terrain, he knew all the cities of the region. तो उसकी पर्पस क्या है? उसकी लाइफ का पर्पस है ट्रैवल करना, और ये जो 2 साल से ये वॉक कर रहा है एंडलुसियन टेरेन में, ये सारी सिटीज को जान गया है उस रीजन की। He was planning on this visit to explain to the girl how it was that a simple shepherd knew how to read. अब जैसे वो जा रहा है ना उस मर्चेंट के घर में, तो वो गर्ल के बारे में भी बताया गया था ना कल, कि उसकी एक डॉटर भी है जिससे उसने पहली बार बात करी थी। तो वो शेफर्ड सोच रहा है, सैंटियागो सोच रहा है कि कैसे वो अपने विजिट पर उस लड़की को सब कुछ एक्सप्लेन करेगा कि कैसे एक सिंपल शेफर्ड ने सीखा कि पढ़ा कैसे जाता है। दैट ही हैड अटेंडेड अ सेमिनरी अंटिल ही वाज 16, कि 16 तक उसने एक सेमिनरी, एक स्कूल अटेंड किया था। हिज पेरेंट्स had wanted him to become a priest and thereby a source of pride for a simple farm family। और उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो एक प्रीस्ट बने जो कि एक सिंपल फार्म फैमिली से वो बिलोंग करता है, तो उसके लिए एक सोर्स ऑफ प्राइड हो जाएगा। मतलब उन्हें गर्व होगा कि अगर एक सिंपल फार्म फैमिली से एक लड़का प्रीस्ट बने। दे वर्कड हार्ड जस्ट टू हैव फूड एंड वाटर लाइक द शीप। तो अभी सैंटियागो बोल रहा है कि मतलब वो सोच रहा है कि इसके जो पेरेंट्स है, इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया जस्ट टू हैव फूड एंड वाटर लाइक द शीप। जैसे शीप को खाना पानी चाहिए वैसे ही इनको भी। ही हैड स्टडीड लैटिन, स्पेनिश एंड थियोलॉजी। तो उसने लैटिन, स्पेनिश, थियोलॉजी भी पढ़ा है। बट ever since he had been a child, he had wanted to know the world, and this was much more important to him than knowing God and learning about man's sins. तो सैंटियागो को जब से वो बच्चा था, एक छोटा सा बच्चा था, तब से ही वो जानना चाहता था इस दुनिया को, और ये उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था देन नोइंग गॉड। भगवान को जानने से और जो इंसानों के पाप है उनको जानने से काफी ज्यादा जरूरी उसके लिए इस वर्ल्ड को जानना था। One afternoon on a visit to his family, he had summoned up the courage to tell his father that he didn't want to become a priest, that he wanted to travel। एक बार एक आफ्टरनून में उसने अपनी फैमिली को विजिट करने के टाइम पर अपने अंदर हिम्मत जुटाई और अपने फादर से कह दिया कि वो प्रीस्ट बनना नहीं चाहता है और वो ट्रैवल करना चाहता है। People from all over the world have passed through this village, son, said the father. They come in search of new things, but when they leave, they are basically the same people they were when they arrived। तो उसके फादर ने बोला कि पूरी दुनिया से लोग इस विलेज से पास करते हैं, इस विलेज से आते जाते हैं। दे कम इन सर्च ऑफ न्यू थिंग्स, वो नई चीजों की सर्च में आते हैं। बट वेन दे लीव दे आर बेसिकली द सेम पीपल दे वेर व्हेन दे अराइव्ड। पर जब वो इस गांव को छोड़कर जाते हैं, तभी भी वो सेम पीपल ही रहते हैं, वही सेम इंसान रहता है जैसे कि वो आए थे। दे क्लाइम द माउंटेन टू सी द कैसल, दे वाइंड अप थिंकिंग दैट द पास्ट was better than what we have now। तो वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं,
ताकि वो कैसल दिख सके। और वो सोचते सोचते पूरे दे वाइंड अप थिंकिंग दैट द पास्ट वाज बेटर। तो वो सोचते हैं कि जो उनका पास्ट था वो बेटर था अभी वो जो है उसके मुकाबले। दे हैव ब्लॉन्ड हेयर और डार्क स्किन बट बेसिकली दे आर द सेम एज द पीपल हु लिव राइट हेयर। तो उन लोगों के ब्लॉन्ड हेयर होते हैं, डार्क स्किन होती है, पर वो भी सेम जैसे यहाँ पे पीपल रहते हैं ना उसी तरह वो भी रहते हैं। बट आई वुड लाइक टू सी द कैसल्स इन द टाउन्स वेयर दे लिव, द बॉय एक्सप्लेन्ड। पर सैंटियागो ने अपने फादर को रिप्लाई क्या दिया कि मुझे वो कैसल्स देखने हैं टाउन्स के जहाँ पे वो रहते हैं। Those people, when they see our land, say that they would like to live here forever. His father continued. तो उसके फादर ने बोला कि जो लोग यहाँ पे आते हैं हमारी लैंड को देखते हैं वो कहते हैं कि उनको यहाँ पे हमेशा के लिए रहना है। वेल I'd like to see the land and see how they live, said the son. तो सैंटियागो ने बोला कि मुझे उनकी उनका लैंड देखना है और किस तरह से वो रहते हैं वो देखना है। द पीपल हु कम हियर have a lot of money to spend so they can afford to travel, his father said. Amongst us, the only ones who travel are the shepherds. तो उसके फादर ने बोला कि जो लोगों के पास में बहुत सारा पैसा होता है ना स्पेंड करने के लिए वही सिर्फ ट्रैवल करने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। और हमारे बीच में कौन ट्रैवल करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ शेफर्ड से ट्रैवल करते हैं। वेल देन आई विल बी अ शेफर्ड। तो फिर सैंटियागो ने अपने फादर को बोल दिया तब तो मुझे शेफर्ड बनना है। His father said no more. The next day he gave his son a pouch that held three ancient Spanish gold coins. तो उसके फादर ने और कुछ उसको नहीं रिप्लाई किया, बस नेक्स्ट डे एक पाउच लाकर दे दिया जिसमें थ्री एंशियंट Spanish gold coins थे. I found these one day in the fields. I wanted them to be a part of your inheritance, but use them to buy your flock. Take to the fields, and someday you'll learn that our countryside is the best and our women are the most beautiful. तो उसके फादर ने बोला कि एक दिन जब मैं फील्ड में काम कर रहा था, जैसे कि उन्होंने बोला था ना कि एक सिंपल फार्म फैमिली है इनकी, तो ये फील्ड्स में काम करते हैं। तब एक बार इनको ये गोल्ड कॉइन्स मिले थे। तब इन्होंने सोचा था कि ये सैंटियागो के इनहेरिटेंस के पार्ट होंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है, जैसे जो फादर से सन को मिलता है ना जमीन जायदाद वैसे वाला। तो ये जो थ्री एंशियंट स्पैनिश गोल्ड कॉइन्स उनको मिले थे वो चाहते थे कि वो अपने बेटे को दे। और पर फिर अब वो कह रहे हैं कि जैसे उसने बोला ना सैंटियागो ने कि उसे एक शेफर्ड बनना है। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम अपनी फ्लॉक को, जो अपनी शीप को खरीदने में इन पैसों को खर्च करना, उनको फील्ड्स में ले जाना, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम ये जान जाओगे कि हमारी जो कंट्री साइड है वही बेस्ट है और हमारी जो वुमेन है यहाँ की वो दुनिया की सबसे सुंदर वुमेन है। एंड ही गेव द बॉय हिज ब्लेसिंग। और ऐसा करके उन्होंने अपने बेटे को सैंटियागो को अपनी ब्लेसिंग्स भी दी। द बॉय could see in his father's gaze a desire to be able himself to travel the world, a desire that was still alive despite his father's having had to bury it over dozens of years under the burden of struggling for water to drink, food to eat, and the same place to sleep every night of his life. तब सैंटियागो ने अपने फादर की आईज में, उनकी जो गेज थी जिस तरह से वो अपने बेटे को देख रहे थे, तो उनकी आईज में उन्हें सैंटियागो को एक डिजायर दिखी, एक इच्छा दिखी जो कि वो खुद भी इस वर्ल्ड को ट्रैवल करना चाहते थे। एक डिजायर थी जो कि अभी भी जिंदा थी उनकी आंखों में, उसके फादर की आंखों में। और उसके फादर को अपनी इस इच्छा को दबाना पड़ा बहुत सालों से, क्योंकि उनको खाना और पानी जुटाने के लिए अपने लाइवलीहुड के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और सेम प्लेस में ही वो हर रात सोने के लिए, इस लाइफ के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था, इसीलिए वो ट्रैवल नहीं कर पाए। द हॉराइजन वाज tinged with रेड एंड suddenly द सन appeared। अभी ऐसा दिखा रहा है जैसे ये तो पूरी स्टोरी वहां तक हुई ना जिनके पहले वो शेफर्ड कैसे बना, अभी वापस
अभी जो प्रेजेंट मोमेंट सैंटियागो का चल रहा है कि वो अपनी शिप के साथ में ट्रैवल कर रहा है और उस विलेज में पहुंचने वाला है जहाँ पे वो मर्चेंट है और उसकी डॉटर है। The horizon कैसा है? Tinged with red, and suddenly the sun appeared. The boy thought back to that conversation with his father and felt happy. तो जो सन था, सन दिखा, हॉराइजन रेड था और सडनली सन दिखा उन लोगों को, मतलब कि सैंटियागो को दिखा, और उसने अभी क्या सोचा था, अपने फादर के साथ में अपनी वो लास्ट कन्वर्सेशन सोची और वो खुश हुआ। He had already seen many castles and met many women, but none the equal of the one who awaited him several days hence. तो उसने काफी सारे कैसल्स भी देखे, काफी सारी वुमेन से भी वो मिला, पर कोई भी उसके जैसी नहीं थी जिससे जिसके बारे में वो कुछ बता रहा था, अपने शीप को बता रहा था, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, जो मर्चेंट की डॉटर थी। ही ओन्ड अ जैकेट, अ बुक दैट ही कुड ट्रेड फॉर अनदर एंड अ फ्लॉक ऑफ शिप। अभी सैंटियागो के पास में क्या क्या है? वो एक जैकेट है उसके पास में, और एक बुक है जो कि वो ट्रेड करता है दूसरी बुक को खरीदने के लिए, क्योंकि वो रीड भी करते रहता है, और उसके पास में एक फ्लॉक है शिप की। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ही वॉज एबल एवरी डे टू लिव आउट हिज ड्रीम। पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है सैंटियागो के पास में? कि वो हर एक दिन अपनी ड्रीम को जी रहा है। इफ ही वर टू टायर ऑफ द Andalusian fields, he could sell his sheep and go to sea. By the time he had enough of the sea, he would already have known other cities, other women, and other chances to be happy. I couldn't have found God in the seminary, he thought as he looked at the sunrise. तभी सैंटियागो सोच रहा है कि उसे सी को भी एक्सप्लोर करना है, और फिर वो और भी सिटीज में जाएगा, और भी वुमेन से मिलेगा, और भी चांसेस होंगे उसे खुश रहने के लिए। फिर वो सोच रहा था कि सेमिनरी जिसमें उसने 16 साल तक पढ़ाई करी, वहां पे तो उसने गॉड को नहीं देखा, वहां पे उसे गॉड नहीं मिले। Whenever he could, he sought out a new road to travel. He had never been to that ruined church before, in spite of having traveled through those parts many times. Whenever he could, he sought out a new road to travel. तो हर बार वो एक न्यू रोड निकाल दे रहा था ट्रैवल करने के लिए। He had never been to that ruined church before. तो ये जो रूइन चर्च है ना अभी जिसमें वो ठहरा हुआ है, इस चर्च में तो वो कभी पहुंचा ही नहीं था, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड थ्रू दोस पार्ट्स मेनी टाइम्स। जिन पार्ट से अभी वो ट्रैवल कर रहा है उनसे तो काफी बार उसने ट्रैवल किया, पर ये जो रूइन चर्च है ये पहले उसने ट्रैवल कभी भी करते हुए नहीं देखा था। The world was huge and inexhaustible. He had only to allow his ship to set the route for a while and he would discover other interesting things. जो वर्ल्ड है, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इनएक्सहॉस्टेबल है, और अपनी शिप को वो सिर्फ थोड़ा सा ही अलाउ करता है कि वो अपने रूट को देखे। he would he would discover other interesting things, और तब वो अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स, और भी इंटरेस्टिंग थिंग्स वो भी डिस्कवर कर लेता है। द प्रॉब्लम इज दैट दे डोंट इवन रियलाइज दैट दे आर वॉकिंग अ न्यू रोड एवरी डे। प्रॉब्लम क्या है कि जो शीप है वो रियलाइज ही नहीं करती कि वो न्यू रोड हर दिन वॉक कर रही है। दे डोंट सी दैट द फील्ड्स आर न्यू एंड द सीजन्स चेंज। ऑल दे थिंक अबाउट इज फूड एंड वाटर। जो शीप है उसकी, जो भेड़ है, वो ये तो देखती ही नहीं है कि फील्ड्स न्यू है और ये जो सीजन्स है, ये मौसम है, वो सब चेंज हो रहा है। वो सिर्फ क्या सोचती है? वो सिर्फ खाना और पानी के बारे में सोचती है। मे बी वी आर ऑल दैट वे, दे वर amused. Even me, I haven't thought of other women since I met the merchant's daughter. तो अभी सैंटियागो सोच रहा है कि हम सभी उस तरह से हैं, हो सकता है, और मैं भी जो हूँ, मैंने भी जब से मैं उस औरत से मिला हूँ जो मर्चेंट की डॉटर थी, उसके बाद से मैंने किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। लुकिंग एट द सन ही कैलकुलेटेड दैट ही वुड रीच तरीफा बिफोर मिड डे। अभी सन के तरफ देखते देखते उसने कैलकुलेट करा कि वो तरीफा पहुंच जाएगा मिड डे से पहले। There, he could exchange his book for a thicker one, fill his wine bottle, shave, and have a haircut.
तो वहां पहुंचकर वो क्या करेगा, अपनी जो बुक है उसको एक्सचेंज करेगा और एक थिक बुक लेगा, क्योंकि कल हमने देखा था ना कि अगर थिक बुक होगी तो वो और ज्यादा कंफर्टेबल पिलो बनाएगी उसके लिए। और फिर वो अपनी वाइन की बोतल को फिल करेगा, शेव करेगा और एक हेयर कट लेगा। He had to prepare himself for his meeting with the girl, and he didn't want to think about the possibility that some other shepherd with a larger flock of sheep had arrived there before him and asked for her hand. तो वो अपनी मीटिंग जो उस लड़की से मिलना चाहता है, उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। और वो इस पॉसिबिलिटी के बारे में तो बिल्कुल सोचना नहीं चाहता है कि उसके पहले कोई और शेफर्ड आया हो और इससे भी बड़ा फ्लॉक ऑफ शीप लेकर आया हो, और वहां पे पहुंच करके उसने उस लड़की का हाथ मांग लिया हो। इट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ ड्रीम कम ट्रू दैट मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, ही थॉट, as he looked again at the position of the sun and hurried his pace. He had suddenly remembered that in Tarifa there was an old woman who interpreted dreams. तो अभी वो जो ड्रीम 2 बार देख चुका है, जिस ड्रीम के वजह से उसे अपनी शीप, जो उसकी मतलब फेथफुल जो उसके कंपेनियंस है उनके ऊपर गुस्सा आ जाता है और उसे उल्टे पुल्टे थॉट्स जो आ रहे हैं, उस ड्रीम के बारे में सोचते हुए उसने अचानक याद किया कि टैरिफा में तो एक ओल्ड वुमन भी रहती है, एक बूढ़ी औरत रहती है जो कि ड्रीम्स को इंटरप्रेट करके उसका मीनिंग बताती है। The old woman led the boy to a room at the back of her house. अच्छा, तो अब वो टेरिफा पहुंच गया। तब ओल्ड वुमन के पास वो गया तो फिर वो जो सैंटियागो है उसको एक रूम में वो ले गई, at the back of her house. It was separated from her living room by a curtain of colored beads. और ये जो लिविंग रूम है उस वुमन का, उस रूम से ये वाला रूम कैसे सेपरेट हुआ है, एक कर्टेन है कलर्ड बीड्स का, मतलब कलरफुल मोती पत्थर इस टाइप के होते हैं ना, तो उससे वो सेपरेटेड है वो रूम। The room's furnishings consisted of a table, an image of the Sacred Heart of Jesus and 2 chairs. तो रूम की फर्निशिंग्स में क्या है, एक टेबल है और एक इमेज है सेक्रेड हर्ट ऑफ जीसस का, और 2 चेयर्स है जिसमें एक में वो अपने क्लाइंट को बिठाती है और एक में वो खुद बैठती है और फिर ड्रीम्स को इंटरप्रेट करती है। और एक इमेज है सेक्रेड हर्ट ऑफ जीसस का, जीसस क्राइस्ट है उनका एक सेक्रेड हर्ट का इमेज भी होता है, और उसके काफी सारे मीनिंग्स भी होते हैं उसमें, जो जो कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो भी इमेज है उस रूम में। The woman sat down and told him to be seated as well. Then she took both of his hands in hers and began quietly to pray. तो वो वुमन बैठ गई एक चेयर पे और एक चेयर पे उसने सैंटियागो को भी बैठने के लिए बोल दिया। उसके बाद में उसने उस सैंटियागो के दोनों हैंड्स अपने हाथों में लिए और फिर वो quietly pray करने लगी. It sounded like a gypsy prayer. The boy had already had experience on the road with gypsies. They also traveled, but they had no flocks of sheep. People said that gypsies spent their lives tricking others. It was also said that they had a pact with the devil and that they kidnapped children and taking them away to their mysterious camps made them their slaves. जैसे ही वो वुमन उसका हाथ लेकर के प्रे कर रही थी तो सैंटियागो को लग रहा था ये तो कोई जिप्सी प्रेयर है, और उसने एक्सपीरियंस किए हैं अपने रोड में बहुत सारे जिप्सीज, वो भी ट्रैवल करते हैं पर उनके पास फ्लॉक ऑफ शिप नहीं रहती है। और लोग कहते हैं कि ये जो जिप्सीज होते हैं ये अपने पूरे जीवन दूसरों को ट्रिक करने में लगा देते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो डेविल होता है, शैतान जो होता है, उनके साथ में भी इनकी बनती है और ये बच्चों को किडनैप करते हैं और उनको ले जाते हैं अपने मिस्टीरियस कैंप्स में और उसके बाद में उनको नौकर बना देते हैं। एज अ चाइल्ड द बॉय हैड ऑलवेज बीन फ्राइटेंड टू डेथ दैट ही वुड बी कैप्चर्ड बाय जिप्सीज। जब वो छोटा था सैंटियागो, तब उसे हमेशा से जिप्सीज से डर लगता था। And this childhood fear returned when the old woman took his hands in hers. और ये जो चाइल्डहुड फियर था उसके अंदर में जिप्सीज का, ये वापस उसे फियर महसूस होने लगा जैसे उस औरत ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर के प्रे करना शुरू कर दिया। बट शी हैज द सेक्रेड हर्ट ऑफ जीसस देयर, he thought, trying to reassure himself. He didn't want his hand to begin trembling.
तो अभी वो सोच रहा है कि इस औरत के पास में तो सीक्रेट हर्ट ऑफ जीसस की इमेज भी है। तो ये अपने आप को रीअश्योर कर रहा है सैंटियागो, ताकि वो कांपने न लगे, शोइंग द ओल्ड वुमन दैट ही वाज fearful। तो ये अगर कांपेगा तो फिर ओल्ड वुमन को समझ आ जाएगा ना कि वो डर रहा है, इसीलिए वो शो नहीं करना चाहता है। ही रिसाइटेड एन आवर फादर साइलेंटली। तो अभी सैंटियागो अपने मन मन में रिसाइट करने लगा आवर फादर प्रेयर है ना, तो वो रिसाइट करने लगा। वेरी इंटरेस्टिंग सेड द वुमन, नेवर टेकिंग हर आइज फ्रॉम द बॉयज हैंड्स, एंड देन शी फेल साइलेंट। तो अभी ओल्ड वुमन जो थी, जिसने हाथ लेकर के रखे थे उसके अपने हाथों में, तो उसने बोला वेरी इंटरेस्टिंग, और उसके बाद वो चुप हो गई। द बॉय वॉज बिकमिंग नर्वस, हिज हैंड्स began to tremble and the woman sensed it. He quickly pulled his hands away. तो जो सैंटियागो है वो नर्वस हो रहा था और उसके हाथ अब कांपने लगे थे, और उस ओल्ड वुमन को भी ये चीज समझ आ गई थी, तो उसने अपने हैंड्स तुरंत हटा लिए। I didn't come here to have you read my palm, he said, already regretting having come. तो वहां आकर के उसने बोला कि मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि आप मेरे पाम रीडिंग करें, जैसे हैंड की रीडिंग होती है ना, जो लोग भविष्य बताते हैं, तो वो उस काम के लिए तो मैं आया ही नहीं था, और वो रिग्रेट कर रहा था कि मैं यहाँ आया ही क्यों। He thought for a moment that it would be better to pay her fee and leave without learning a new thing, that he was giving too much importance to his recurrent dream। अब वो सोच रहा था कि इस ओल्ड वुमन की फीस को पे किया जाए और यहाँ से बस चले जाए, कुछ भी सीखे नहीं। क्यों, वो सोच रहा था कि एक रेकरेंट ड्रीम जो बार बार उसे ड्रीम आया, उसको ये कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहा था। यू केम सो दैट यू कुड लर्न अबाउट योर ड्रीम्स, सेड द ओल्ड वुमन, एंड ड्रीम्स आर द लैंग्वेज ऑफ गॉड। When he speaks in our language, I can interpret what he has said। ओल्ड वुमन कह रही है कि तुम यहाँ आए थे ताकि तुम अपनी ड्रीम्स को लर्न कर पाओ, और जो ड्रीम्स होती है वो गॉड की लैंग्वेज होती है। जब वो हमारी लैंग्वेज में हमें कुछ बताते हैं और मैं उसको इंटरप्रेट करती हूँ कि गॉड ने क्या बोला। बट इफ ही स्पीक्स इन द लैंग्वेज ऑफ द सोल, इट इज ओनली यू हु कैन अंडरस्टैंड। पर अगर जो गॉड है वो लैंग्वेज ऑफ द सोल से बात करेंगे, तब फिर सिर्फ तुम ही हो जो उस चीज को समझ पाओगे। बट विच एवर इट इज, आई एम गोइंग टू चार्ज यू फॉर द कंसल्टेशन। पर चाहे कुछ भी हो, मैं मुझे कंसल्ट करने के लिए मैं तुमसे फीस चार्ज करूंगी। Another trick, the boy thought, but he decided to take a chance. A shepherd always takes his chances with wolves and with drought, and that's what makes a shepherd's life exciting। अभी वो बॉय सोच रहा है, जब उसने फीस की कंसल्टेशन फीस की बात करी तो फिर उसने सोचा एक और ट्रिक हो गई उसके साथ में। पर फिर उसने डिसाइड किया कि वो एक चांस ले, क्योंकि जो शेपर्ड्स होते हैं वो हमेशा चांसेस लेते रहते हैं विद वुल्व्स। क्योंकि जो भेड़िया होते हैं वो भेड़ को खा जाते हैं ना, तो जैसे ये लोग फील्ड्स में जाते रहते हैं तो वाइल्ड एनिमल्स का भी डर रहता है, तो शेपर्ड उनसे भी चांसेस लेते हैं। और ड्रॉट हो अगर किसी जगह पे, तो खाना और पानी कैसे मिलेगा। तो वो सब चीजें जो है शेपर्ड के लिए वो सब चैलेंजेस होते हैं, और इनसे ही उनकी जो लाइफ होती है वो एक्साइटिंग बनती है। आई हैव हैड द सेम ड्रीम ट्वाइस, ही सेड, आई ड्रीम्ड दैट आई वाज इन अ फील्ड इन विथ माय शिप। तो अभी वो बता रहा है उसे ड्रीम क्या आ रही थी दो बार से, कि उसने बताया ये वाली सेम ड्रीम मुझे दो बार दिखी, और मुझे ड्रीम में आया कि मैं अपनी शिप के साथ में फील्ड में था, व्हेन अ चाइल्ड अपीयर्ड एंड बिगेन टू प्ले विद द एनिमल्स। तब एक बच्चा आया और फिर वो इन एनिमल्स के साथ में, इन शीप्स के साथ में खेलने लगा। आई डोंट लाइक पीपल टू डू दैट बिकॉज द शीप आर अफ्रेड ऑफ स्ट्रेंजर्स। और मुझे पसंद नहीं है कि लोग अगर ऐसा करें, क्योंकि जो शीप है वो स्ट्रेंजर्स को देख करके डर जाती है। बट चिल्ड्रन ऑलवेज सीम टू बी एबल टू प्ले विद देम विदाउट फ्राइटनिंग देम। पर जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा ही उनके साथ में खेल पाते हैं और उन्हें डराए बिना खेल पाते हैं। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो हाउ एनिमल्स नो द एज ऑफ ह्यूमन बींग्स। मुझे नहीं पता ये कैसे, मुझे नहीं पता ये एनिमल्स कैसे ह्यूमन बींग्स की एज जान जाते हैं। टेल मी मोर अबाउट योर ड्रीम, सेड द वुमन। I have to get back to my cooking, and since you don't have much money, I can't give you a lot of time।
तो उस ओल्ड वुमन ने बोला कि मुझे अपने ड्रीम के बारे में और बताओ, मुझे भी जाकर के कुकिंग भी करनी है, और क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। The child went on playing with my sheep for quite a while, continued the boy, a bit upset. And suddenly the child took me by both hands and transported me to the Egyptian pyramids. तब फिर सैंटियागो ने बताया कि वो जो बच्चा था वो उन शीप्स के साथ में प्ले कर रहा था कुछ टाइम तक, और अचानक से उसने मेरे हाथ पकड़े और मुझे सीधा इजिप्शियन पिरामिड्स तक पहुंचा दिया। He paused for a moment to see if the woman knew what the Egyptian pyramids were, but she said nothing. तो अभी सैंटियागो ने बोलते बोलते पॉज लिया, वो रुक गया कि वो देखना चाहता था कि क्या उस ओल्ड वुमन को पता भी है कि इजिप्शियन पिरामिड्स क्या है, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। देन एट द इजिप्शियन पिरामिड्स ही सेड द लास्ट थ्री वर्ड्स slowly so that the old woman would understand. The child said to me, if you come here, you will find a hidden treasure. तब इजिप्शियन पिरामिड्स में क्या हुआ, ये बोलते बोलते उस सैंटियागो ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया ताकि वो औरत समझ पाए वो कह क्या रहा है। तो इजिप्शियन पिरामिड्स में उस बच्चे ने मुझसे कहा कि अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें एक छुपा हुआ खजाना मिलेगा, एक हिडन ट्रेजर मिलेगा। And just as she was about to show me the exact location, I woke up both times. तो जैसे ही वो बच्चा मुझे एग्जैक्ट लोकेशन दिखाने वाला था वैसे ही मैं जग गया अपने सपने से। दोनों बार जब मुझे ड्रीम आया मेरे साथ में यही हुआ। The woman was silent for some time. Then she said, she again took his hands and studied them carefully. तब जो ओल्ड वुमन थी वो कुछ देर के लिए साइलेंट हो गई, उसने उसके बाद में उसने फिर से उसके दोनों हाथ लिए और उन्हें ध्यान से स्टडी करने लगी। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज यू एनीथिंग नाउ, शी सेड, बट आई वॉन्ट 1/10 ऑफ द ट्रेजर इफ यू फाइंड इट। तो अब उस ओल्ड वुमन ने बोला कि मैं तुमसे कुछ भी अभी चार्ज नहीं करूंगी, पर मुझे उस खजाने का 1/10 दे देना अगर तुम्हें वो मिल जाएगा। द बॉय laughed out of happiness. He was going to be able to save the little money he had because of a dream about hidden treasure. तो अभी वो सैंटियागो हंसने लगा। उसे खुशी हो रही थी कि वो थोड़े से पैसे उसके बच रहे हैं क्योंकि उसे एक ड्रीम आया था एक छुपे हुए खजाने के बारे में। Well, interpret the dream, he said. तो सैंटियागो ने बोला कि आप ड्रीम को इंटरप्रेट करो। इस ड्रीम का मीनिंग क्या है? फर्स्ट स्वेयर टू मी, स्वेयर दैट यू विल गिव मी 1/10 ऑफ योर ट्रेजर इन एक्सचेंज फॉर व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। तो उस औरत ने बोला कि पहले तुम कसम खाओ कि तुम मुझे उस ट्रेजर का 1/10 दोगे जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसके एक्सचेंज में। द शेफर्ड swore दैट ही वुड। तो अभी उसने कसम खा ली कि हाँ मैं तुम्हें 1/10 दे दूंगा। द ओल्ड वुमन आस्क्ड हिम टू स्वेयर अगेन बाय लुकिंग एट द इमेज ऑफ द सेक्रेड हर्ट ऑफ जीसस। तो अभी उस वुमन ने बोला कि फिर से तुम कसम खाओ, सेक्रेड हर्ट ऑफ जीसस की इमेज को देखते हुए कसम खाओ। It's a dream in the language of the world, she said. I can interpret it, but the interpretation is very difficult. That's why I feel that I deserve a part of what you find. तो उसने कहा कि ये लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इस दुनिया की लैंग्वेज का एक ड्रीम है और मैं इसको इंटरप्रेट कर सकती हूँ, पर ये जो इंटरप्रिटेशन होती है ये काफी मुश्किल होती है, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं डिजर्व करती हूँ जो तुम्हें मिलेगा उसका एक पार्ट मैं भी डिजर्व करती हूँ। एंड दिस इज माई इंटरप्रिटेशन, यू मस्ट गो टू द पिरामिड्स इन इजिप्ट। I have never heard of them, but if it was a child who showed them to you, they exist. There you will find a treasure that will make you a rich man. तब उस औरत ने बोला कि ये मेरी इंटरप्रिटेशन है कि तुम्हें जो पिरामिड्स इन इजिप्ट है, इजिप्शियन पिरामिड्स है, वहां पे जरूर जाना चाहिए। मैंने उनके बारे में कभी सुना नहीं है, पर अगर एक बच्चा है जिसने तुम्हें वो रास्ता दिखाया है तब फिर वो जरूर होंगे, और तुम्हें वहां पे ट्रेजर भी जरूर मिलेगा, खजाना भी मिलेगा जो कि तुम्हें अमीर बना देगा। द बॉय वाज सरप्राइज्ड एंड देन इरिटेटेड, ही डिडंट नीड टू सीक आउट द ओल्ड वुमन फॉर दिस।
But then he remembered that he wasn't going to have to pay anything. तो अभी ये जो बॉय है सैंटियागो, ये सरप्राइज भी हो गया, फिर इरिटेट भी हो गया। तो अभी वो उसे याद आया कि उसे कुछ भी उस ओल्ड वुमन को पे तो करना नहीं है। आई डेंट नीड टू वेस्ट माई टाइम फॉर दिस, ही सेड। तब सैंटियागो ने बोला कि मुझे अपने टाइम को ऐसे वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आई टोल्ड यू दैट योर ड्रीम वॉज अ डिफिकल्ट वन। इट्स द सिंपल थिंग्स इन लाइफ दैट आर द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ओनली वाइज men are able to understand them. And since I'm not wise, I have had to learn other arts such as the reading of palms. तो ओल्ड वुमन ने बोला कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हारी ड्रीम एक डिफिकल्ट ड्रीम है, और जो सिंपल चीजें होती है लाइफ की वही मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो लोग ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं उन चीजों को। और मैं तो उतनी ज्यादा वाइज नहीं हूँ, मुझे और भी आर्ट सीखने हैं, जैसे कि पाम रीडिंग मुझे सीखनी है। वेल हाउ एम आई गोइंग टू गेट टू इजिप्ट? तब उस बॉय ने पूछा कि मैं इजिप्ट कैसे जाऊंगा? आई ओनली इंटरप्रेट ड्रीम्स, आई डोंट नो हाउ टू टर्न देम इनटू रियलिटी। दैट्स व्हाई आई हैव टू लिव ऑफ व्हाट माय डॉटर्स प्रोवाइड मी विथ। तब ओल्ड वुमन ने बोला, मैं सिर्फ और सिर्फ ड्रीम्स को इंटरप्रेट करके बताती हूँ कि उसका मीनिंग क्या है, पर मुझे ये नहीं पता है कि उन ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे टर्न किया जाए, रियलिटी में उसे कैसे कन्वर्ट किया जाए। और इसीलिए मुझे उन्हीं चीजों के साथ में वैसे ही अपने अपने जीवन को बिताना होता है जो कि मेरी डॉटर्स मुझे प्रोवाइड करती है। एंड व्हाट इफ आई नेवर गेट टू इजिप्ट? तो सैंटियागो ने पूछा कि क्या होगा अगर मैं कभी इजिप्ट नहीं गया तो? देन आई डोंट गेट पेड, इट वुडंट बी द फर्स्ट टाइम। तब ओल्ड वुमन ने कहा कि ठीक है, तब फिर मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे, और ये पहली बार नहीं है जब मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। एंड द वुमन टोल्ड द बॉय टू लीव, सेइंग शी हैड ऑलरेडी वेस्टेड टू मच टाइम विथ हिम। फिर उस ओल्ड वुमन ने उसको सैंटियागो को कह दिया कि वो जा सकता है, और ये भी कहा कि उसने बहुत अपना टाइम वेस्ट किया इसके वजह से। सो द बॉय वाज डिसअपॉइंटेड, ही डिसाइडेड दैट ही वुड नेवर अगेन बिलीव इन ड्रीम्स। तब वो सैंटियागो डिसअपॉइंटेड हो गया, और उसने डिसाइड किया कि अब वो कभी भी ड्रीम्स के ऊपर बिलीव नहीं करेगा। ही रिमेम्बर्ड दैट ही हैड अ नंबर ऑफ थिंग्स ही हैड टू टेक केयर ऑफ। He went to the market for something to eat. He traded his book for one that was thicker, and he found a bench in the plaza where he could sample the new wine he had bought. तब उसे याद आया कि उसे बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है। तब फिर वो मार्केट गया कुछ खाने के लिए, और उसने अपनी बुक को ट्रेड किया एक दूसरी थिक बुक के साथ में। और फिर उसे प्लाजा में एक बेंच भी मिला जहाँ पे बैठ करके वो न्यू वाइन जो है उसे सैंपल कर सकता है। द डे वॉज हॉट एंड द वाइन वॉज रिफ्रेशिंग। अभी ये जो दिन है ये काफी हॉट है, और जो वाइन है वो रिफ्रेशिंग है। द शीप एट द गेट्स ऑफ द सिटी इन अ स्टेबल दैट बिलोंग टू अ फ्रेंड। और जो शीप है उसकी वो सिटी के गेट्स पे है, और वो स्टेबल है, एक स्टेबल पे है वो, जो कि बिलोंग करता है उसके एक फ्रेंड को। मतलब कि उसके एक फ्रेंड का स्टेबल है जहाँ पे वो शीप्स है। द बॉय न्यू अ लॉट ऑफ पीपल इन द सिटी, और इस सिटी में वो जो शेफर्ड है सैंटियागो वो बहुत लोगों को जानता है। दैट वाज व्हाट मेड ट्रैवलिंग अपील टू हिम। He always made new friends and he didn't need to spend all of his time with them. तो ये ट्रैवलिंग उसके लिए अपीलिंग इसलिए भी है कि वो हमेशा न्यू फ्रेंड्स भी बनाता है, और उसे अपना बहुत ज्यादा टाइम उनके साथ में स्पेंड भी नहीं करना पड़ता है। When someone sees the same people every day, as had happened with him in the seminary, they wind up becoming a part of that person's life. जब कोई किसी से हर दिन मिलता है जैसे कि सेमिनारी में होता था, तब फिर वो लोग उस पर्सन की लाइफ का एक पार्ट बन जाते हैं। देन दे वांट द पर्सन टू चेंज, और उसके बाद में वो फिर उस पर्सन को चाहते हैं कि वो चेंज करे। इफ समवन इजंट व्हाट अदर्स अदर्स वांट देम टू बी, द अदर्स बिकम एंग्री। और अगर कोई ऐसा नहीं हो जैसा कि दूसरे उसे बनाना चाहते हैं, तो फिर वो दूसरे लोग गुस्सा हो जाते हैं। Everyone seems to have a clear idea of how other people should lead their lives, but none about his or her own. यहाँ बोला गया है कि हर किसी को एक क्लियर आइडिया होता है कि सामने वाले उस इंसान को
कैसे रहना चाहिए, अपनी लाइफ को कैसे लीड करना चाहिए, पर उन्हें ये आइडिया नहीं होता है कि उन्हें खुद की लाइफ को किस तरह से लीड करना चाहिए। He decided to wait until the sun had sunk a bit lower in the sky before following his flock back through the fields. तब उसने डिसाइड किया कि वो वेट करेगा कि सन जो है वो संक करे, मतलब सनसेट हो जाए थोड़ा स्काई में, कि वो अपने फ्लॉक को वापस फील्ड्स में लेकर आएगा। 3 days फ्रॉम नाउ ही वुड बी विद द मर्चेंट्स डॉटर। 3 दिन के बाद में वो फिर उस मर्चेंट की डॉटर के साथ होगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, और सेशन अब हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। Thank you so much, sister. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, Karuna sister. थैंक यू रितु सिस्टर।